Now the next topic is sesame and til. Only til oil is used in India since ages. In North India, it is a rain-based kharif crop. In South India, it is sown as rabi crop and occasionally a zaid crop. So basically, teal is used for making oil, and in North India it is used as kharif, whereas South India it is grown as zaid crop. Okay, zaid as well as rabi. So in South they're shown as rabi as well as zaid, whereas in North India it is only shown as kharif crops. Okay, almost all the state grows teal. Each and every state. Grows the teal almost. Among all oil seeds, teal has more content of oil. As many oil seeds we have, just like a groundnut we have mustard, but sesame teal, that is teal tail, have the most oil content in it. Okay, in almost all parts of the world, it is used as an edible oil. Major producer of teal are Gujarat, Tamil Nadu, West Bengal, Karnataka, Madhya Pradesh, etc. Okay, Gujarat ranked first in India in terms of teal production. Gujarat stands first in the production of teal and the area zone. Banaskantha grows maximum teal. Banaskantha grows maximum teal. Maximum export of teal in the world is done by India, and so the maximum export of teal is being done by India. Now there is mustard teal. Now there is a mustard seeds. Mustard, this is a rabi crop and it's important for North India. It is a rabi crop and it is very much important. It holds a lot of significance in North India. Mustard seed and its oil are used for medicine and also as edible. Mustard seeds को हम लोग दवाइयों की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और एडिबल ऑयल की तरह. एडिबल ऑयल मतलब खाने पकाने में जो तेल का इस्तेमाल होता है उसकी तरह भी हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश इसके मेजर प्रोड्यूसर्स है. ठीक है, इसके मेजर प्रोड्यूसर्स है. नाउ कोकोनट इज अ प्लांटेशन क्रॉप ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड कोस्टल क्लाइमेट. कोकोनट जो है वो ज्यादातर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट पे होता है. ठीक है. एंड सलाइन इसीलिए तो जो हमारे क्या बोलते हैं दरिया किनारे के पास बहुत ज्यादा आपको कोकोनट के बड़े बड़े ट्रीज देखने मिलते हैं. इट्स बिकॉज ऑफ सैलिनिटी. ओके, वो बहुत ज्यादा सॉल्टी लैंड होता है इसी वजह से. इन इंडिया तो कोकोनट प्लांटेशन आर फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार एक्सेट्रा. इन गुजरात कोकोनट इज ग्रोन इन कोस्टल रीजन. गुजरात में कोस्टल रीजन पे ये उगाया जाता है. ठीक है. A special type of coconut tree which is shorter and giving more yield is developed. अब हम लोग इस तरीके का कोकोनट ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा चीज बनाने की प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत लंबा ना हो, शॉर्ट हो और उसकी जो yield है वो ज्यादा हो. In South India, coconut oil extracted from coconut kernel is used as edible oil. Now in South India, coconut oil is extracted from the coconut kernel and is used as edible oil. मतलब जो coconut kernel होते हैं उसके अंदर से वो लोग coconut oil extract करते हैं, बाहर निकालते हैं और उसे खाने पकाने वाले तेल की तरह इस्तेमाल करते हैं. Beside its water is useful as healthy drink. हाँ, हम लोग जो नारियल का पानी पीते हैं वो काफी healthy होता है. ठीक है. नाउ कैस्टर ऑयल. कैस्टर मतलब दिवेल जो होते हैं उससे हम बोलते हैं कैस्टर ऑयल. कैस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड दिवेला लोकली. देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि कैस्टर को आप दिवेला भी जानते हैं. ठीक है. इट इज बोथ खैरिफ एज वेल एज रबी. ये खैरिफ भी होता है, रबी भी होता है. विथ 64%, India is the largest producer of castor in the world. India is the largest producer of the castor, that is 64%. China and Brazil come next respectively. देखो सबसे पहला इंडिया आता है जिसका 64% का शेयर रहता है. फिर चाइना और ब्राजील आता है. मतलब सेकेंड इज चाइना, थर्ड इज ब्राजील. About 80% of its production comes from Gujarat. बोलो, देखो यहाँ पे 64% जितना हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन रहता है. ठीक है. जो टोटल 100% कंट्रीब्यूशन होता है दुनिया में उसमें से 64% हमारा है और उस 64% में 80% का जो प्रोडक्शन है वो गुजरात करता है.
ठीक है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और अदर प्रोड्यूसर्स। इन गुजरात, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़ एंड अमरेली। देखो ये याद रखना बहुत आसान है। अगर कैस्टर ऑयल में यहाँ पे गुजरात में बताया और गुजरात में साबरकांठा वाले एरिया बताया है, तो ये सारे काठियावाड़ी एरियाज है। आप देखो बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़ एंड अमरेली। सो आप याद रख सकते हो कि कैस्टर ऑयल जो है वो ज्यादातर काठियावाड़ साइड मिल रहा है। तो आप काठियावाड़ साइड की कौन सी जगह हो रही है, तो बनासकांठा है, पाटन है, साबरकांठा है, राजकोट और जूनागढ़, अमरेली। ठीक है। प्रोड्यूस अ लिटिल क्वांटिटी द ऑयल फ्रॉम कॉटन सीड्स। जो ऑयल होता है कॉटन सीड्स से, सनफ्लावर से, पैडी, मेज ऑल्सो आर यूज इंक्रीजिंगली एज एडिबल ऑयल। अब आता है बिवरेजेस। बिवरेजेस जो होती है जैसे चाय है, कॉफी है, दैट कम्स अंडर बिवरेजेस। हम जानते हैं अगर चाय की बात आती है तो आसाम सबसे पहले दिमाग में आ जाता है। तो आसाम, इंडिया में आसाम में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है चाय का। लेट्स रीड अबाउट चाय। चाय तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट रहता है सबका। थकान लगी है, चाय पीना है। ज्यादातर इंडिया में तो बहुत लोग चाय के दीवाने होते हैं, ठीक है। और आजकल सोशल मीडिया पे भी काफी चाय चाय मशहूर रहती है। Okay, so chai is one of the most loved beverages in the corners of the world. जैसे हमारे वहाँ क्या होता है, शादी ब्याह होता है तो लोग चाय पीते हैं। कभी कोई इनफैक्ट कोई गुजर भी जाता है तो भी चाय इज समथिंग विच कम्स। ओके, मतलब ऐसा माना जाता है कि चाय एक रिफ्रेशमेंट ड्रिंक की तरह काम करता है। ओके, सो हियर विल रीड फॉर टी। टी इज अ प्लांट ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट जोन। यहाँ पे ट्रॉपिकल में भी होता है और टेम्परेट में होता है। The tea leaf and its tender sprouts are processed and its powder and small leaves are used in drinks. उसके जो पत्तियां होती है और उसके जो छोटे छोटे स्प्राउट्स होते हैं उन्हें प्रोसेस करते हैं, पाउडर करते हैं, और जो स्मॉल स्मॉल लीव्स होती हैं वो ड्रिंक की तरह इस्तेमाल होता है। इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टी आफ्टर चाइना। इंडिया चाइना के बाद अगर कोई देश सबसे ज्यादा टी का प्रोडक्शन करता है तो वो हमारा इंडिया है। श्रीलंका, चाइना एंड इंडिया आर लीडिंग टी एक्सपोर्टर्स। तीन है, देखो श्रीलंका, चाइना और इंडिया, ये तीन जो है वो सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूस करते हैं। स्लोपी लैंड वेयर द वाटर इजीली फ्लोज डाउन, गुड आयरन कंटेंट। हाँ हमें याद है, हमें ध्यान देता है कि आसाम में से पहाड़ होते हैं, तो बेसिकली टी के प्रोडक्शन के लिए आपको स्लोपी लैंड्स चाहिए और इजीली फ्लोज डाउन, मतलब ऐसा एरिया चाहिए जो इजीली फ्लो कर सके। गुड आयरन कंटेंट, 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, अबाउट 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल कमिंग इन द फॉर्म ऑफ शावर थ्रू आउट द ईयर। मतलब पूरे साल थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहनी चाहिए। आर फेवरेबल कंडीशन फॉर टी प्लांटेशन। कौन सी कंडीशन है, देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि स्लोपी लैंड मांगा गया है, ठीक है। तो हमें स्लोपी लैंड चाहिए, फिर उसके अंदर अच्छा आयरन होना चाहिए, 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर चाहिए, 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल जरूरी है, और ऐसी रेनफॉल जो पूरे साल थोड़ा थोड़ा बारिश बूंदे आती रहे, ठीक है। अब जो टी ये सारे इसके फेवरेबल कंडीशन है। अब टी कहाँ उगाई जाती है ज्यादातर, तो वेस्ट बंगाल में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। आसाम एंड वेस्ट बंगाल प्रोड्यूसेस अबाउट 75% टी ऑफ द नेशन। पूरे 100% में से 75% टी का प्रोडक्शन जो है वो आसाम और वेस्ट बंगाल में होता है। द टी लीव्स आर वेरी स्किलफुली प्लग्ड फ्रॉम द प्लांट्स। बड़े स्किलफुली इस हम लोग टी लीव्स को प्लग करते हैं प्लांट्स में से, ठीक है। इसके अलावा अब बात आती है कॉफी। कॉफी जो है वो काफी मॉडर्न काइंड ऑफ टी है जो मॉडर्न लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। एंड जैसे अभी हमारे वहाँ ट्रेंड निकला था डेलगोना कॉफी, ठीक है। तो कॉफी इज रियर्ड ओवर द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। ये भी माउंटेन्स के स्लोप्स पे की जाती है। इन द शेड्स ऑफ लार्जर ट्रीज इन सच अ वे दैट नो डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द कॉफी। हाँ ये देखो, बड़े बड़े लंबे लंबे प्लांट्स उगाए जाते हैं, ट्रीज उगाए जाते हैं, और उनके शेड में, उनकी छाया में कॉफी को उगाया जाता है, ताकि जो भी सनलाइट है वो उन प्लांट से होकर इन तक पहुंचे। मतलब डायरेक्ट सनलाइट का कांटेक्ट होना चाहिए नहीं। The coffee crop needs 150 to 200 centimeter of rainfall and 15 degree and 20 degree Celsius of temperature. 15 to 20 degree जितना temperature चाहिए और 15 to 200 जितना rainfall. Coffee is grown in abundance in Karnataka. कहाँ कहाँ बहुत ज्यादा उगती है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु।
कुर्ग एरिया ऑफ कर्नाटका, कुर्ग आपको इंग्लिश में चैप्टर है कुर्ग, तो कुर्ग एरिया ऑफ कर्नाटका इज वेल नोन रीजन ऑफ अ कॉफी प्रोडक्शन। कुर्ग जो है वो कॉफी प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस एरिया है। कॉफी सीड्स आर एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द नट्स, नट्स में से कॉफी सीड्स निकाले जाते हैं, ग्राइंड किए जाते हैं एंड देन यूज्ड एज ड्रिंक। आपने अगर वो एड देखी हो आम पन्ना, ऐसी कोई ऐड है ना, आम पन्ना करके ऐड है जिसके अंदर ये चीज पूरी बताई गई है। इफ आई कैन शो यू ऑल, आई ट्राई इफ आई कैन शो। वो आम पन्ना वाली ऐड नहीं मिल रही। Yes, this one is. दक्षिण भारत में मानो एक अलग ही सूरज उगता है जो इपन्ना के कॉफी बागान को नरमाहट से सहलाता है। ये सूरज कॉफी की कच्ची बेरियों को गहरी लाल करके जायके से भरता है। यही सूरज सख्ती से उनके बीजों को सुखाकर उनकी महक निखारता है। इपन्ना और इस अलग सूरज की मेहनत ही तो बनाती है ब्रू इंस्टेंट को इंडिया की सबसे टेस्टी कॉफी। अच्छा, Hi, have you always wanted to learn to code but don't know where to start? Would you like to make amazing websites and apps and bring your ideas to life? Then this is your course on web development from beginner to advanced. Programming is the most in-demand skill in 2019. And ओके, कैश क्रॉप में सबसे पहले आता है कॉटन। कॉटन जो है वो खारिफ क्रॉप होता है। कॉटन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट पोजीशन अक्वायर करता है कैश क्रॉप में। कैश क्रॉप्स इन गुजरात, गुजरात के अंदर जो कैश क्रॉप होते हैं और जो इंडिया में जो कैश क्रॉप होते हैं उसके अंदर कॉटन का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। एट वन लेवल इंडिया इज अ सेकेंड प्लेस इन द प्रोडक्शन, दुनिया में हमारा सेकेंड पोजीशन आता है प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। यूसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन, हम प्रोड्यूस भी सबसे ज्यादा करते हैं, यूज भी ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट भी ज्यादा होता है। ठीक है, कॉटन विदाउट सीड इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट। जो कॉटन होता है विदाउट सीड वो ऑब्टेन किया जाता है कॉटन प्लांट में से। दिस कॉटन इज नोन एज व्हाइट गोल्ड इन इंडिया। कॉटन जो है वो हमारे वहाँ पे व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है क्योंकि हमारा बहुत अबंडेंस में होता है। ठीक है, और इससे बहुत पैसा भी अर्न कर पाते हैं हम लोग। बिसाइड द कॉटन सीड ऑयल इज यूज टू प्रिपेयर एडिबल ऑयल। वो कॉटन सीड के ऑयल जो कॉटन सीड होता है उसमें से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है वो खाना पकाने वाले तेल में भी बनता है। ठीक है, अगर तुमने कभी सुना हो तो कपासिया तेल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये कपासिया तेल जो है वो ये कॉटन सीड्स में से निकलता है। ठीक है, एंड what else it says? The cotton is known as white gold in India. Besides the cotton seed, oil is used to prepare edible oil and its seeds and oil cake are used as animal food. उसके seeds वगैरह जो है वो animal fuel की तरह भी use होता है। ओके,
तो जो ऑयल केक्स होते हैं वो एनिमल फूड की तरह यूज होते हैं, एनिमल के लिए खाना बन जाता है वो, ठीक है। ब्लैक लावा सॉइल विच कैन रिटेन ह्यूमिडिटी फॉर लॉन्गर टाइम, इसमें ब्लैक लावा सॉइल की जरूरत होती है जो लंबे समय के लिए ह्यूमिडिटी स्टोर करके रख सकते, कुछ 20 डिग्री to 35 डिग्री सेल्सियस जितना उसका टेम्परेचर चाहिए, 30 to 70 सेंटीमीटर जितना रेनफॉल चाहिए, मतलब ज्यादा रेनफॉल की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। जो ग्रोइंग सीजन द ग्रोइंग सीजन फॉर कॉटन इज अबाउट 6 to 8 months, 6 से 8 महीने लगते हैं कॉटन को उगने के लिए, ठीक है। आई रिपीट इट अगेन, देखो कॉटन सबसे पहले तो क्या है, एक खारिफ क्रॉप है। कॉटन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैश क्रॉप्स में, इंडिया में भी और गुजरात में भी। वर्ल्ड लेवल पे इंडिया जो है वो सेकेंड प्लेस पे आता है इन द प्रोडक्शन ऑफ इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन यूजेज एंड एक्सपोर्ट, मीन्स उसका प्रोडक्शन, उसका यूजेज और उसका एक्सपोर्ट, ये तीनों चीजें हमारे इन तीनों चीजों में इंडिया जो है वो सेकेंड पोजीशन एक्वायर करता है। इंडिया में जो कॉटन होता है उसे व्हाइट गोल्ड कहते हैं, उसका रीजन ये है कि आप कॉटन की तरह तो उसे इस्तेमाल कर ही रहे हो, प्लस उसको एडिबल ऑयल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, और उसके जो ऑयल केक्स होते हैं वो जानवरों के लिए खाना भी बन जाता है, ठीक है। अब ये ब्लैक और लावा सॉइल में उगते हैं और बहुत लंबे टाइम के लिए, मतलब उन्हें ऐसा सॉइल की जरूरत है जिसके अंदर ह्यूमिडिटी जो है वो लंबे टाइम के लिए होल्ड होती हो, ठीक है। इसमें 20 to 35 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर चाहिए और 30 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल, मतलब ज्यादा बारिश की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। और 6 से 8 महीने लगते हैं इन्हें ग्रो करने में। Frost damages the cotton crop in India. Major cotton producing states are Gujarat, Maharashtra, Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh, Haryana, Rajasthan, Punjab, Tamil Nadu, Odisha, etc. As the farmers of Gujarat have accepted BT cotton seeds, that is cotton seeds which have the high yield. So Gujarat stands first in India in area shown productivity. हमारी जो एरिया shown productivity होती है उसमें गुजरात जो है वो फर्स्ट आता है। The total production quality of cotton. Cotton is grown more in Surendranagar, Rajkot, Vadodara, Ahmedabad, साबरकांठा, मेहसाना, बोटाड, भरूच। अगर आपको भरूच में देखना है तो अगर आप झाड़ेश्वर वाली आइनॉक्स पर जाओ तो वो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आती है, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अपोजिट साइड जो खेत है वो वहां पे सब जगह कॉटन उगता है, एग्रीकल्चर के अपोजिट साइड। एग्रीकल्चर के लाइन में तो यू विल एबल टू सी द ऑर्चर्ड्स, जहाँ पे अलग अलग तरीके के फ्रूट्स उगाए जाते हैं, पर उसके अपोजिट साइड पे अगर आप देखो तो वो जो ग्राउंड्स है, जो खेत है, वहां पे कॉटन उगाया जाता है। Cotton is grown more in Surendranagar, Rajkot, Vadodara, Ahmedabad, Sabarkantha, Mehsana, बोटाद, भरूच, खेड़ा, सूरत, पंचमहाल, अमरेली, भावनगर, पाटन, जूनागढ़, जामनगर डिस्ट्रिक्ट, मतलब ऑलमोस्ट सारे मेन डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है शुगर केन। शुगर केन इज अ मेजर क्रॉप इन इंडिया, सबसे मेजर क्रॉप है इंडिया में। मैक्सिमम शुगर केन इज सोन इन इंडिया इन द वर्ल्ड। इन प्रोडक्शन इंडिया रैंक सेकेंड आफ्टर ब्राजील, ब्राजील के बाद हमारा पोजीशन सेकेंड आता है। शुगर दैट इज गुड़, खंसारी एंड इथानॉल आर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ द शुगर केन। देखो शुगर तो बनती है, शक्कर जिसे हम बोलते हैं वो, गुड़ गुड़ जो होता है, जो यू कैन सी, गुड़ खाया है कभी? गुड़ खाया ही होगा, जो कि घर में भी मम्मी को पूछना, मम्मी गुड़ बताएंगे। तो गुड़, खांसारी एंड इथेनॉल, इथेनॉल you might have learned in science, okay, is produced out of sugar cane. Black fertile alluvial lava soil, इसमें हम लोग को ब्लैक फर्टाइल लावा सॉइल की जरूरत होती है। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट, 21 डिग्री सेल्सियस to 27 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, 75 to 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल आर नेसेसरी फॉर sugar cane. उत्तर प्रदेश is a top in area zone but महाराष्ट्र leads in production. उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप में है एरिया जोन करने में, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र करता है। साउथ गुजरात एंड सौराष्ट्र प्रोड्यूस मोर शुगर केन इन गुजरात। गुजरात में साउथ गुजरात और सौराष्ट्र जो है वो सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप सूरत की तरफ जाओ तो आपको बहुत ज्यादा शुगर केन के खेत देखने मिलेंगे, ठीक है। ये बात हुई हमारी शुगर केन की। अब हम जाते हैं जूट की तरफ। जूट इन इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस करता है पूरी दुनिया में। द जूट फाइबर इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। जूट फाइबर इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। जूट, आई रिपीट, जूट फाइबर को गोल्डन फाइबर कहते हैं।
नाउ जूट के क्लोथ्स बनते हैं, गनी बैग्स जिसमें पहले के जमाने में तो नहीं बोल सकते, पर कुछ अरसा पहले जो हमारे वहां पे गेहूं और चावल आते थे वो गनी बैग्स में आते थे जो जूट से बनी होती थी। फिर मैट्रेसेस बनाते हैं, रोब्स बनाते हैं, बैग्स, फुटवेयर्स, हैंडीक्राफ्ट्स आइटम एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम द जूट। इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम बांग्लादेश with regards to cheap labor in just industries. Jute require fertile soil of delta region where new sediments is deposited every year, hot and humid climate. 30 degree to 40 degree of Celsius of temperature is being required, 100 centimeter of rainfall. Jute is grown more in Ganga Delta. गंगा के पास ज्यादा इसे ग्रो किया जाता है। वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश ये सब जगह है जहाँ पे जूट को उगाया जाता है। फिर आता है टोबैको। टोबैको इज अ खैरिफ क्रॉप होता है, वो सैंडी और लोमी सॉइल में उगता है। 20 डिग्री सेल्सियस जितना उसे टेम्परेचर चाहिए, 100 सेंटीमीटर जितनी रेनफॉल। ठीक है। सुटेबल फॉर टोबैको कल्टीवेशन, सॉइल इज डिटरमाइंड फैक्टर, देन क्लाइमेट फॉर टोबैको कल्टीवेशन। Major 4 countries in the world which grow and export tobacco are China, Brazil, इंडिया, यूएसए, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका ये सारी जगह पर बहुत ज्यादा उगता है टबैको। द चरोतर रीजन ऑफ खेड़ा एंड आनंद डिस्ट्रिक्ट, जो चरोतर रीजन है खेड़ा और आनंद डिस्ट्रिक्ट का, महसाना, वडोदरा, पंचमहाल ये सब जगह पे बहुत ज्यादा टबैको उगता है। अबाउट 80% ऑफ बीडी टोबैको ऑफ इंडिया इज प्रोड्यूस्ड इन गुजरात। 80% ऑफ बीडी का जो टोबैको प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में होता है, सॉरी गुजरात में होता है। टोबैको इज यूज टू मेक गुटखा बनाने में, बीड़ी, सिगरेट, स्नफ एक्सेट्रा। Tobacco consumption is harmful to health. सिक्किम is first state to ban tobacco गुटखा। सिक्किम दुनिया का पहला इंडिया का पहला स्टेट है जहाँ पे टबैको पूरी तरीके से बैन है। Okay, this was about tobacco. Now we'll move towards rubber. रबर इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ मिल्क ओजिंग आउट ऑफ लेटेक्स ट्रीज। जो लेटेक्स ट्रीज होती है उसके अंदर से जो मिल्क निकलता है, मिल्क मत जो उसके अंदर से जो अगर आपने देखा होगा कि कुछ कुछ ट्रीज के ऊपर से काफी ज्यादा रबर निकलता है, वो मिल्क होता है जिसमें से आप रबर प्रोड्यूस करते हैं। एसिटिक एसिड इज मिक्स्ड विद द मिल्क, उस दूध के साथ, उस मिल्क के साथ एसिटिक एसिड, आई रिपीट कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड मिक्स किया जाता है फ्रॉम द रबर प्लांटेशन, देन इट इज हीटेड ऑन लो टेम्परेचर टू ऑब्टेन रबर, फिर एकदम धीमी आंच पर उसे पकाया जाता है। इट इज यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे टायर्स, ट्यूब्स etc. Rubber plantation is carried out in regions of hot and humid climate and having heavy rainfall. Malaysia ranks first in the world in the rubber production. Rubber production में मलेशिया का फर्स्ट आता है। इंडिया में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आसाम, त्रिपुरा ये सब वो स्टेट्स है जहाँ पे रबर प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। अब we'll move forward towards medicinal condiments and spices. Medicinal condiments and spices. Gujarat ranked first in the production of cumin seed, fennel seed, isabgol in the world. Cumin seed, jeera जो होता है वो, fennel seed and isabgol. Isabgol is a kind of pinkish white color powder which is being dissolved in water or milk and then being consumed. ठीक है। Beside this, India leads in the production and export of dried coriander, जो धाना जीरा होता है वो। Fenugreek मतलब यहाँ पे spelling mistake है, fenugreek, it should be K. So fenugreek is methi, mustard is rye, suwa and ajwain. Suwa, you can ask your moms to show what is suwa, and ajwain, you know ajwain. इंडिया कंट्रीब्यूट्स अबाउट 35% इन टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ द कॉन्डिमेंट्स। हम लोग 35% पूरा दुनिया का जो प्रोडक्शन है उसमें 35% जो है वो हमारा रहता है। इंडिया ब्लैक पेपर, सिनेमन, क्लोव एक्सेट्रा इन हाई डिमांड इन द कंट्री एंड वर्ल्ड। अश्वगंधा, तुलसी, केरियातू, मिंडी अवल, व्हाइट मुसली, मधुशनी, अशोक, गरमल, लिंडी पीपर, गैलो,
एलोवेरा एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन मेडिसिनल प्लांट्स। ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो हमारे वहाँ मिलते हैं। उसके अलावा मिंट है, मेंथोल है, पल्म रोजा है, लेमन ग्रास है, ये सारे फ्लेवर्ड क्रॉप्स भी हमारे वहाँ इजीली मिल जाते हैं। ठीक है। अब बात आती है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स की। तो इन फ्रूट प्रोडक्शन इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हमारा सेकंड रैंक आता है। फ्रूट्स लाइक बनाना, मैंगो, एप्पल, grape, नाशपाती, ऑरेंज एक्सेट्रा आर ग्रोन इन इंडिया। बनानाज आर ग्रोन इन तमिलनाडु। बनानास जो है वो तमिलनाडु में उगाए जाते हैं। गुजरात में, महाराष्ट्र में। एप्पल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। एप्पल्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में। ग्रेप्स हिमाचल प्रदेश एंड ग्रेप्स इन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में ग्रेप्स उगाए जाते हैं। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। एज द ग्रेप प्रोडक्शन इज लेस देन इट्स डिमांड, ग्रेप का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होता है और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तो इट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट करते हैं। बिसाइड वेरियस वेजिटेबल्स आर ग्रोन, फ्लावर्स लाइक रोज, जूई, मोगरा, गलगोटा etc. are also cultivated. Thus various crops are grown in India. यहाँ पे अलग अलग क्रॉप्स वगैरह आपको दिए हुए और हम लोग सिर्फ जो ग्रेप्स है, जो द्राक्ष है, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब आता है टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। हमारे पास टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होते हैं। वेरी मच इंपॉर्टेंट आंसर स्टूडेंट्स। अर्लियर फार्मिंग वाज कैरिड आउट बाय सिंपल एंड ऑर्डिनरी फार्म इम्प्लीमेंट्स। हम लोग एकदम नॉर्मल इम्प्लीमेंट्स इस्तेमाल करते थे फार्मिंग के लिए, जैसे सिकल है, स्पेड है, हो है, दैट इज पावड़ा, जो पावड़ा बोलते हैं ना, दैट इज हो। तो ड्रिल, प्लॉ, then bullock cart, etc. Now modern implements have entered into it, which tractor, trailers, rotavators, etc. are common. Besides modern equipments like thresher, harvesters are used in wheat harvesting. There is increase in usage of chemical fertilizer, hybrid seeds, BT seeds, insecticides, drip irrigation and ग्रीन हाउसेस। मतलब पहले हम लोग सब पुरानी पुरानी कंजर्वेटिव मेथड्स इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे हम लोग अपग्रेड हो गए हैं और हम टेक्नोलॉजिकल इस्तेमाल करते हैं और हम लोग अपग्रेडेड सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग मेथड्स यूज करते हैं। ओके। सो इसीलिए यहाँ पर दो तरीके की दो चीजें आपको बताई गई है। एक होती है टेक्निकल रिफॉर्म्स और दूसरी होती है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है। अब ये जो बीटी सीड्स है, हियर इट इज रिटर्न बीटी सीड्स। तो बीटी सीड्स जो होते हैं वो बेसिकली रिफॉर्म्ड, मतलब एक प्रॉपर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जो एकदम जेनेटिकली उसे मॉडिफाई करके जो इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं बीटी सीड्स। जैसे हम लोग ने अभी इसमें पढ़ा था ना कि कोकोनट्स को है उसे मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीटी इज बी स्टैंड फॉर बैक्टीरियस एंड टी स्टैंड फॉर thuringiensis thuringiensis। so BT stands for Bacillus thuringiensis. Okay. I'll write the spelling over here for you. Bacillus thuringiensis. Okay, so this is BT seeds, basically a genetically modified crop. They are genetically modified crop. You can write in your textbook, genetically modified crops. ठीक है। You can write it in your textbook so that you don't forget. Now we'll start with technical reforms. The changes which have taken place in seeds. जिस तरीके के changes आए हैं seeds के अंदर,
फर्टिलाइजर्स में, फार्म इम्प्लीमेंट्स में इन इंडिया आर नोन एज टेक्निकल रिफॉर्म्स। मतलब सीड्स, फर्टिलाइजर और फार्म इम्प्लीमेंट्स में जो चेंजेस आए हैं उन्हें हम बोलते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स। आई रिपीट, आपके सीड्स में, आपके फर्टिलाइजर्स में और आपके फार्म इम्प्लीमेंट्स में जो चेंजेस आए हैं उससे हम बोलते हैं फर्टिलाइजर, सॉरी, उससे हम बोलते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स। The farmer who earlier used leather buckets and water will now use submersible pumps or monoblock pumps, solar pumps और drip irrigation and sprinklers। एक टाइम पे जो फार्मर लेदर बकेट्स और वाटर व्हील्स का इस्तेमाल करता था, आज वो सबमर्सिबल पंप्स और मोनोब्लॉक पंप का इस्तेमाल करता है, या फिर आप सोलार पंप या फिर ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकल का इस्तेमाल करता है। I'll show how are submersible pump and monoblock pump। ये देखो, जिसे आप आई गेस क्या बोलते हैं हिंदी में, सबमर्सिबल पंप को, मोटर, मोटर जो होती है ना जो पानी खींचती है, दैट इज सबमर्सिबल पंप एंड मोनो मोनोब्लॉक पंप। complete electrical motor is known as monoblock pump। I'll show you drip irrigation method। Look, you can see this drip irrigation method. You can see this one. I'll open and show। Look, this is drip irrigation, where water is not being wasted as well as fully utilized. Okay. Chemical fertilizer like diammonia phosphate, that is DAP, nitrogen, phosphorus, potash, that is NPK, urea and other biofertilizer, liquid biofertilizer, biotech seeds are used। फार्मर्स आर कॉन्स्टेंटली गाइडेड थ्रू रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर। बहुत सारा फार्मर्स को गाइड करने के लिए भी बहुत सारे अलग अलग तरीके की उनकी टीचिंग हैबिट्स निकाली है। जैसे रेडियो पे उन्हें समझाया जाता है, टेलीविजन पे बताए जाते हैं, दूरदर्शन पे ये सारी चीजें आती है। फिर न्यूज़पेपर में भी काफी कुछ आ जाता है फार्मर्स के रिलेटेड। दूरदर्शन किसान चैनल स्पेशली शुरू किया गया है जिसमें उन्हें सारी टेक्निकल स्किल्स सिखाई जाती है। एसएमएस और मोबाइल बाय द किसान, मतलब अगर ये लोग ये किसान कॉल सेंटर में कॉल करते तो उन्हें जो भी मदद की जरूरत होती है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। फिर गवर्नमेंट फार्म वेब पोर्टल्स होते हैं, आई खेडूत एंड मोबाइल एप्स लाइक एग्री मार्केट। तो ये सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फार्मर्स तक पहुंचने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है न्यू एग्रीकल्चर रिसर्चेस एंड न्यू टेक्निक्स आर कन्वेड टू द फार्मर्स इन द। नई एग्रीकल्चर रिसर्चेस और टेक्निक्स जो है वो भी फार्मर्स इन द विलेजेस, जो विलेज में, जो गांव में, बिल्कुल अंदर अंदर जो गांव में फार्मर्स हैं उन तक पहुंचाने के लिए ग्राम सेवक बनाए गए हैं जो उन तक पहुंच सकते हैं। मतलब अलग अलग तरीके से हम लोग ने कोशिश की है कि हम फार्मर्स तक पहुंच सके और उनकी मदद कर सके। A farmer training center is established in every district headquarter wherein the farmers are given training। हर जगह पे फार्मर ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए गए हैं ताकि अगर किसी भी फार्मर को जरूरत पड़े तो वहां पे उन्हें ट्रेन कर दिया जाता है। फिर आता है Recent information and guidance are provided to the farmers through agriculture affairs in Gujarat। मेले लगाए जाते हैं जहाँ पे फार्मर्स को बुलाया जाता है, उन्हें अलग अलग जो नई नई जो टेक्निक्स वगैरह होती है वो सब कुछ सिखाई जाती है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर कॉलेजेस आर एस्टैब्लिश इन एवरी स्टेट। हर जगह पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस खोल दिए। हमारे भरूच में भी है, जैसे मैंने तुम्हें कहा कि आप झाड़ेश्वर वाली आइनॉक्स के ऊपर जाओ, आइनॉक्स के पास जाओगे तो मक्तमपुर के बाहर एक एग्रीकल्चर कॉलेज है, दैट इज एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ नवसारी। नवसारी यूनिवर्सिटी जो है उसकी ब्रांच है यहाँ पे।
The agriculture universities are established at Dantewada, Junagadh, Anand and Navsari in Gujarat. This university carry out research and prepares new experts in agriculture. बहुत सारे बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं. There are many students who take admission in agriculture and they flourish their farming skills. फिर आता है beside this Indian Council of Agriculture Research, that is ICAR, जो constantly farming के ऊपर research करते रहते हैं, and Department of Agriculture Research Education, that is DARE, are active at national लेवल. ICAR और जो डेर है दोनों ही काफी एक्टिव है नेशनल लेवल पे. ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च. एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए जो काउंसिल बनाया गया है वो ICAR है. और जो डेर है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन. वो रिसर्च और एजुकेशन दोनों प्रोवाइड करता है. ठीक है. अब आता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. द रिफॉर्म्स कनेक्टेड विद लैंड ओनरशिप. आपकी किसकी लैंड ओनरशिप होनी चाहिए, क्रॉप्स की क्या सब्सिडी होनी चाहिए, सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस्ड आर कंसीडर्ड टू बी द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया. ये सारी चीजें जो है वो इंडिया के इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आती है. ठीक है. किसके रिगार्डिंग? लैंड की ओनरशिप के रिगार्डिंग, क्रॉप की सब्सिडी के रिगार्डिंग, सेल ऑफ farm produced are considered to be the institutional reforms in India. Government has discarded landlordism and stopped the exploitation of farmers. जो landlordism था कि भाई ये खेत का मालिक अलग हो और खेडूत कोई अलग हो, ये चीज खत्म कर दी और जो फार्मर्स एक्सप्लॉइट हो रहे थे वो बंद कर दिया. अंडर द लॉ लैंड टू द टीलर, लैंड टेनेंसी एक्ट, the land tillers have been given the right to become the owner of the land. मतलब जो लैंड को टील करेगा, जो लैंड को जो जमीन खेड़ेगा, उसी का लैंड की उसी के पास लैंड की ओनरशिप रहेगी. मतलब जो लैंड के ऊपर काम करेगा उसी की ओनरशिप रहेगी. The disparity among the land ownership has been removed by land ceiling act. जो अलग अलग डिस्पैरिटी थी वो भी रिमूव कर दी. मतलब जो डिस्पैरिटी मतलब जो डिफरेंशिएशन था कि जो अमीर है उनके पास ज्यादा लैंड और जो गरीब थे उनके पास छोटा छोटा लैंड था, वो सब भी हटा दी गई. Farmers are given financial help for crop subsidy by Kisan Credit Card and by Nationalized and Cooperative Bank. उनको काफी फाइनेंशियल हेल्प भी दी गई है किसान क्रेडिट कार्ड से और कोऑपरेटिव बैंक से. फार्मर्स को पूरा इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम से. उसके अलावा व्हेन द क्रॉप्स फेल ड्यू टू ड्रॉट, मतलब कभी समझो कि बारिश नहीं आई या कभी बहुत बारिश आ गई तो भी गवर्नमेंट उन्हें फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है. ठीक है. और इंश्योरेंस इसीलिए लिया जाता है कि सपोज करो कि किसी रीजन की वजह से आपके क्रॉप्स नहीं बिके, आप क्रॉप्स नहीं बेच सके हो, तो उस वक्त आपके पास उसका इंश्योरेंस है तो कंपनी आपको जो भी नुकसान होगा वो पे ऑफ कर देगी. ठीक है. अब आता है by providing the legal support and open auction process is made widespread for the sale of farm products in marketing yards. ओपन ऑक्शन दिया जाता है ताकि फार्मर्स जो है वो एक्सप्लॉइट ना हो अगर वो अपनी जमीन बेचने निकले तो. फैसिलिटीज जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मार्केट एसोसिएशन, कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज मतलब अगर बहुत बार ऐसा होता है कि उनका पार्क तो बहुत अच्छा होता है लेकिन उसे स्टोर करने के लिए अच्छी जगह नहीं होती, तो वेयर हाउसेज स्टोर रूम जैसे होते हैं वेयर हाउसेस कहते हैं, तो वो प्रोवाइड किए जाते हैं. कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ये सारी चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एट द मिनिमम प्राइस. ठीक है. फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फॉर द परचेस ऑफ द फार्म प्रोडक्ट, कौन कौन काम कर रहा है? तो नाफेड, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. फिर गुजरात कोऑपरेटिव ऑयलसीड्स ग्रोवर फेडरेशन एंड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, दैट इज NDDP. प्लीज रिमेंबर द फुल फॉर्म्स. देखो मैं याद करवाती हूँ एक बार. नाफेड, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. फेडरेशन ऑफ इंडिया है तो N फॉर नेशनल, A फॉर एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव, N फॉर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया. एंड गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड ग्रोवर्स फेडरेशन, तो ग्रोफेड. तो ग्रोफेड में क्या कर रहे हैं वो लोग? ग्रो कर रहे हैं, तो ग्रोवर वाला याद रखने का. ग्रोफेड इज बेसिकली ग्रोइंग, सो देयरफॉर गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड ग्रोवर्स फेडरेशन. और NDDP तो डेयरी डेवलपमेंट, DD स्टैंड्स फॉर डेयरी डेवलपमेंट, तो और आजू बाजू लगा दो नेशनल और बोर्ड, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड.
फिर आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन अवर कंट्री इन डेकेड ऑफ 1960। 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, बट बिफोर दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज एन एक्यूट स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री। हमारे वहाँ बहुत ज्यादा कमी हो गई थी फूड ग्रेन स्टोर करने के लिए। एन एग्रेरियन कंट्री हैड इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स। एक एग्रेरियन कंट्री थी जिसने इम्पोर्ट की थी फूड ग्रेन्स। द कंट्री वाज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट सच डिपेंडेंट कंडीशन। जो कंट्री थी वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी ऐसे डिपेंडेंट कंडीशन में। ठीक है। the the extraordinary increase in agriculture production because of improved seed। जो बहुत, देखो एक जमाना ऐसा था हमारा जब हमारी फूड ग्रेन्स हम हमारी जरूरतें भी नहीं पूरी कर पा रहे थे, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि हम दुनिया में लोगों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो वो किस वजह से पॉसिबल हो पाया? हमारी इम्प्रूव सीड्स क्वालिटी की वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से, अलग अलग फार्मिंग टेक्निक्स की वजह से। तो ये सारी चीजें जो है, जो अचानक जो एक रश हुआ, अचानक एक इम्प्रूवमेंट हुआ, उसे हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। the extraordinary increase in the agriculture production because of improved seeds, increased use of chemical fertilizer, intense efforts of farmers, widespread arrangement for electricity distribution, improved facility in irrigation, etc. is known as green revolution। फिर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो मेन उनका जो मेन मकसद था वो था कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा सके। फार्मर्स वर एनकरेज टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड्स मोर, ताकि जितना हो सके उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़े। दिस लेड टू अटेन द लार्जेस्ट सॉरी दिस एबल टू अटेन द टारगेट टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। देयर हैज बीन रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड पैडी ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। और बहुत हमने आगे ही पढ़ा था, जब व्हीट और पैडी की जब हम पढ़ रहे थे तभी हमने पढ़ा था कि व्हीट और पैडी का इमेंस इमेंस प्रोडक्शन हुआ गया है। तो एकदम रिकॉर्ड बनाया गया ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान। एंड वेयर देयर वाज स्कैरसिटी ऑफ फूड grains in country, today there is sufficient storage of food grain। एक ऐसा टाइम जब हमारे पास कमी होती थी फूड ग्रेन्स की, आज हमारे पास ऐसा टाइम है कि हमें चाहिए उतने फूड ग्रेन्स मिल जाते हैं। Once a drought was a hazard of regular interval in India, its adverse effects are not seen after the grain revolution due to the buffer stock of food grain। बहुत ज्यादा buffer stock है food grain का। the condition of drought of scarcity are faced conveniently। बहुत ज्यादा buffer stock का मतलब होता है कि मतलब हमारे पास इतना स्टॉक फूड ग्रेन्स ऑलरेडी स्टोर्ड है कि अगर इन केस अगर हमारे वहां पे ड्रॉट आ जाता है, दुकाल आ जाता है, तब भी हम आसानी से वो सिचुएशन फेस कर सकते हैं। द सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन इज अ लैंडमार्क ऑफ हिस्टोरिक अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जिस तरीके से हम लोग ने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली है एग्रीकल्चर में, ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट बन गया है, इसलिए तो पूरा उसे ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आप खुद सोचो कि एक ऐसी जगह जहाँ पे, ऐसा समझो कि हमारे पास फूड ग्रेन्स तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जहाँ पे हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे हमारी फार्मिंग टेक्निक्स के साथ। आज हम वो सारी चीजें इजीली ओवरकम कर पा रहे हैं और हम एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, और पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी कंट्री में हो गया है। ठीक है। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स इज इंक्रीज एंड प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड अदर सीरियल्स with the repetition of same crop. To reach the stage where other countries of the world have progressed using better technology in agrarian field, we have to ready for the next green revolution। अगर हम चाहते हैं कि बाकी कंट्रीज के साथ हम लोग जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके साथ हम बराबर की कंपटीशन में उतरे, तो हमें दूसरे ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। अब एग्रीकल्चर का क्या रोल होता है हमारे इंडियन इकोनॉमी में? एग्रीकल्चर इज मेन ऑक्यूपेशन इंडिया। मैंने चैप्टर की शुरुआत में ही आपसे ये चीज डिस्कस कर ली थी कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारे वहाँ मेन ऑक्यूपेशन है। ज्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ठीक है। द प्रेशर विच इंडिया हैड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इज नाउ रिड्यूस समवट। जो प्रेशर था लोगों का इंडिपेंडेंस के दौरान वो काफी कम हो गया है। हाउएवर इट हैज एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूट इन इंडियन इकोनॉमी। कैसे? हम लोग देखो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, आधे से ज्यादा पॉपुलेशन हमारा एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। 17% ऑफ जीडीपी हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें 17% कंट्रीब्यूशन रहता है। फिर व्हीट है, पैडी है, ऑयल सीड, कॉटन, जूट, शुगर केन, टबैको, पोटैटोस, ये सारे मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो फॉरेन में एक्सपोर्ट होते हैं।
फिर इंडिया रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड इन एग्रेरियन प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंडिया का दूसरा नंबर आता है। फिर इंडिया इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, ऑयल एज वेल एज इंडस्ट्रीज रिगार्डिंग फूड प्रोसेसिंग गेट द रॉ मटेरियल। जो इंडस्ट्रीज है जो बेसिकली एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट है, उन्हें भी इजीली रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं। Agriculture provides food to the people of India. खाना मिलता है. The Indian contribution is not consistent in the world agriculture market because of irregular and uncertain rain, inadequate facility of irrigation. हमारा जो consistency है वो maintain नहीं हो पाती, शायद कभी बारिश की वजह से, या फिर आज भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे irrigation पहुंच पाता नहीं है. We have become self-reliant in the field of grain production due to green revolution. Along with the increase in farm production, there is increase in population of country also. काफी हद तक population में भी increase हो गया है. In 1951, India's population was at 36 crore 10 lakh, which today is more than 125 crore. 125 crores तक हम पहुंच गए. The increased demand for food grain. अब तुम सोचो कि उस वक्त हम नहीं कर पाते थे, तो इस वक्त तो कितना मुश्किल हो जाता अगर कंडीशंस वैसी की वैसी रहती. पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने के बावजूद भी हम हर जगह तक फूड ग्रेन्स पहुंचा पा रहे हैं. ठीक है. However, there has been an increase in production of food grain in our country during last 5 years. In 1950 to 51, India has produced 51 crore tons of food grains. हम लोग ने 51 crore tons of food grains बनाई है, produce की है, which has increased to record level of 265.4 crore. पहला जो record था वो था वो increase which has increased to a record level of 265 crore. 51 crore से हम लोग 265 तक पहुंच गए हैं 13-14 में. With the food grain which have today, the minimum requirement of country can be fulfilled. It is necessary to maintain buffer stock to increase it. By the buffer stock of grains, the scarcity of grain can be prevented during the drought or in case of inadequate production of food grain. कभी ऐसा हुआ कि भाई ड्रॉट आ गया या कभी हम लोग फूड ग्रेन्स उतनी उगा नहीं पाए, तो हम बफर स्टॉक से हमारा काम चला सकते हैं. The wastage of food grain can be prevented by implementing the techniques to preserve the grains in warehouse. अलग अलग जो टेक्निक्स है उससे इस्तेमाल करके हम इन्हें प्रोटेक्शन दे सकते हैं. The hunger of thousands of families can be satisfied if the buffer stock is distributed among them free of charge. बहुत सारे लोगों का भूखमरा हम दूर कर सकते हैं अगर हम उन्हें बफर स्टॉक से प्रोवाइड कर सके, वो भी बिना पैसे के. इट इज अ स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी ऑफ टाइम टू स्टॉप द वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन. पर हम लोग बहुत ज्यादा फूड वेस्ट करते हैं और बहुत जरूरी हो गया है कि हम उसे स्टॉप कर दें. ठीक है. आप जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जाओगे तो आपको देखने मिलेगा कि अगर आप वहां पे खाना वेस्ट करते हो तो दे चार्ज पेनल्टी. तो मतलब जितना खाना आपके टेबल में है उतना कंप्लीट करो वरना आपको पेनल्टी लगेगा for wastage of food. It is good beginning that government has made provision to supply the food grain up to poor people through Food Security Act. फूड सिक्योरिटी एक्ट से गवर्नमेंट लोगों तक खाना पहुंचा पा रही है. Impact of globalization of Indian agriculture. Globalization मतलब when world is becoming global village in ट्रेडिंग करने के लिए सारे देश के लोग एक साथ आ जाते हैं तो उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. तो उसका इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या फर्क पड़ा. द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड विद द पर्पस दैट इंडियन फार्मर कैन सेल हिज फार्म प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड मार्केट एंड अर्न प्रॉफिट. हमारे प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं. मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन द एग्रीकल्चर फील्ड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. द प्रोसेस टू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्रॉप प्रोडक्शन इज मेड वेरी सिंपल. आसान कर दिया ये पूरा जो फॉर्मेट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो बहुत इजी कर दिया है. कॉटन, चिलीज एंड तील आर नाउ अवेलेबल इन चाइनीज मार्केट एंड वेरियस फ्रूट्स फ्रॉम वर्ल्ड आर नाउ अवेलेबल इन इंडिया. जो दुनिया के फ्रूट्स है, अवाकाडो जैसे फ्रूट्स है, ड्रैगन फ्रूट्स है, कीवी है, ये सारे इंडिया में पहुंचाए गए. द कॉस्टली जेनेटिकल मॉडिफाइड बीटी सीड्स सोल्ड द मल्टीनेशनल कंपनीज आर नाउ अवेलेबल इन इंडिया. जो बीटी सीड्स है वो भी इंडिया में अवेलेबल है. ड्यू टू दिस फार्मिंग हैज बिकम कॉस्टली. द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड मेज हैज इंक्रीज. कॉटन एंड मेज का जो प्रोडक्शन है वो काफी बढ़ गया है. विद द इम्पोर्ट बिकमिंग स्मूदर द डोमेस्टिक फार्म प्रोडक्ट हैव टू फेस टफ कंपटीशन. क्योंकि इम्पोर्ट भी इतना आसान हो गया है. देखो जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वैसे ही कोई और कंट्री भी हम एक्सपोर्ट करती होगी, तो उस वजह से जो कंपटीशन है वो बहुत हाई हो जाता है. ठीक है.
some products have gained global market, hence the necessity of registration of their patent. क्योंकि बहुत सारे चीजें ऐसी है जिन्हें ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं तो पेटेंट से रजिस्टर करवाना पड़ता है. ठीक है. Qualitative farm productive as a national patent in the world market. To face the competition in agriculture product in global market, India will have to adopt a new technology. हमें नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा क्वालिटी के ऊपर. A series of planned steps will have to be taken to increase the economic prosperity and solidarity of the people. हमें एक प्लान स्टेप्स डिसाइड करने पड़ेंगे ताकि हम इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो है वो मेंटेन कर सके. With the increasing population, probable future increase in the demand for agriculture product, and to maintain the march of economic progress, necessary arrange the strategy for the second green revolution. जिस तरीके से डेवलपमेंट होता जा रहा है हम बिल्कुल रेस में हिस्सा ले सकेंगे और हम आगे बढ़ सकेंगे, पर एकदम टफ कंपटीशन देने के लिए हमें सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की वजह से इजीली हमारे फार्मर्स बाहर एक्सपोर्ट करने लगे, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ गया है इंपोर्ट होने की वजह से. तो हम लोग को कंपटीशन में सरवाइव करना है. उसके अलावा बहुत सारे न्यू टेक्निक्स जो है वो सब आ गई है. हम लोग वो न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया है, पर काफी हद तक हमें बहुत फायदा आता है. बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, इसीलिए उनका पेटेंट लेना बहुत जरूरी हो जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस वाज योर चैप्टर 10. I hope you understood it well. Whatever doubts will be there, I'll clear it online interactive session. Thank you so much. Have a good day. God bless you.